So in today's class, we will be discussing about biomolecules. It's the last chapter in chemistry, right? For CBSE chemistry, it's last chapter. And in state board, it is almost the second last chapter, whatever it is. So biomolecules, can anyone say what is biomolecule? Tell me, you are a bio student. What's the biomolecule? Where they are found? They are found in human body, plant body, animal body, means a living organism. Biomolecules are present in living organisms. And say some examples of biomolecule, Irish. Okay, DNA, RNA. So what is the general term for this DNA and RNA? Na stands for nucleic acids. Okay, nucleic acids are biomolecules. Then amino acids and proteins, of course. Then carbohydrates, lipids, vitamins, parts, everything will come there. So first of all, let's have a quick revision on the important topics of this chapter. So we will begin with the glucose is structural elucidation, which is a must question for board exams as well as this kind of all kind of entrance exam. Mainly 5 to 6 reactions of glucose you have to study. So because of these reactions, we get to know that the structure of glucose is like this. Okay. So first of all, glucose, it will react with the hydrogen iodide and red phosphorus to give hexane. देखो, glucose हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके हेक्सेन बन रहा है, स्ट्रेट चेन. हेक्सेन का फॉर्मूला क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6. हेक्सेन का फॉर्मूला क्या है? C6H14. C6H12 कौन है? वो हेक्सीन होगा ना. सो CnH2n plus 2 है, सो इट इज C6H14 रहेगा. ओके, वो बन जाएगा. तो फर्स्ट रिएक्शन यू अंडरस्टूड, ग्लूकोज बिकम hexane, N-hexane. Then second one, reaction with the NH2OH, hydroxylamine. What will be the product? Anoxine will be there, right? And reaction with HCN will give a cyanohydrin. This reaction we have studied in aldehyde ketone carboxylic acid, because you know glucose has an aldehyde group, right? Where it is glucose has an aldehyde group. Here it should be one H group, it's a single bond, right? No, there it is. See, you can see the first carbon is this. In the first carbon, you can see CHO group is there. C double bond or single bond H. This aldehyde functional group that can react with the HCN. Aldehyde react with HCN to form cyanohydrin, and in the same way, it will react with the NH2OH to form oxine. Okay, so oxine, cyanohydrin, these are the two products if you treat glucose with the HCN and NH2OH. So ये reaction समझा, ये वाला भी समझा. अब देखो यहाँ पे, this is very very important. Most of the time entrance exam में यही पूछते हैं. Bromine water, bromine water ऐसे तो mild reducing agent और strong reducing agent. कैसा है? Mild. Okay. So ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है. ऑक्सीडाइजिंग कर रहा है तो CHO को ऑक्सीडाइज किया तो क्या होगा? COOH हो जाएगा. सिंस इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो जो फर्स्ट कार्बन में जो एल्डिहाइड है दैट विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट कार्बन में जो CHO है दैट विल बी ऑक्सीडाइजिंग टू व्हाट? COOH. ओके, तो वैसे ही COOH में कन्वर्ट किया तो इट विल बी अपीयरिंग लाइक दिस, COOH. ओके, एंड नीचे क्या रहेगा? CH2OH. उसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, सो ओनली वन फंक्शनल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. तो वैसा है तो उसको ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं. तो ग्लूकोनिक एसिड कैसे दिखता है? एल्डिहाइड की फर्स्ट कार्बन में CHO की जगह पे COOH आना चाहिए. And if you are going to treat it with HNO3, concentrated HNO3, that is a strong oxidizing agent. So फर्स्ट कार्बन में जो एल्डिहाइड है वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा. लास्ट कार्बन में जो CH2OH है, अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इज देयर, राइट? अल्कोहल कैन बी आल्सो ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड देन टू कार्बोक्सिलिक एसिड. इफ इट इज अ स्ट्रांग रिएजेंट देन इट विल बिकम स्ट्रांग कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? सो ये वाला क्वेश्चन भी क्या होगा? This CH2OH will be converted into COOH.
OH, अल्टीमेटली इसको सकारिक एसिड बोल सकते हैं। सो इन बिटवीन कितना रहेगा, 4CHOH रहेगा, ओके। एंड ऊपर जो CHO है दैट विल बी कन्वर्टिंग इनटू COOH, नीचे भी जो CH2OH है दैट विल आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू CH2OH। सो इट विल लुक लाइक ग्लूकोज की फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है, दैट इज सकारिक एसिड। समझा? अगर एक ही कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हुआ तो ग्लूकोनिक एसिड बोल सकते हैं, वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में होगा। अगर दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो उसको सकारिक एसिड बोलते हैं, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में होता है। एक बार क्विकली रिवाइज करो, अभी हमने 4 रिएक्शन पढ़ा है। रिएक्शन नंबर 1, ग्लूकोज विद हाइड्रोजन आयोडाइड, क्या मिलेगा, फल्गुनी हेक्सेन, स्ट्रेट चेन हेक्सेन में कन्वर्ट हो सकता है, 6 कार्बन अल्केन। देन ग्लूकोज विद NH2OH, हाइड्रोक्सिलामीन, ऑक्सीन बनेगा, साइनोहाइड्रिन बनेगा अगर HCN के साथ ट्रीट किया तो वो हो गया। देन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे Br2 वाटर है तो ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा, ओनली फर्स्ट वन CHO विल बिकम COOH। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहा है तो द लास्ट वन विल आल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू COOH, दैट इज सकारिक एसिड। ये दोनों याद रखना है हमेशा। देन कमिंग टू एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ CH3COO CH3, एसिटिक एनहाइड्राइड COO राइट, CH3COO COCH3, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हमने ट्रीट कर रहा है तो क्या होगा, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट मिलेगा, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। मतलब उसकी देखो सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेकंड से लेके सिक्स्थ तक जो 5 कार्बन है ना, वो सब कुछ अनहाइड्रेट बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, पेंटा एसिटेट बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। So these are the important reactions you have to remember. हाइड्रोजन आयोडाइड का साथ रिएक्ट किया, NH2OH, HCN, Br2 वाटर, और स्ट्रॉन्ग के लिए क्या किया, HNO3 के साथ। फाइनली ग्लूकोज पेंटाएसिटेट कैसे मिला, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके मिला। These are always asking for the exam. This is very 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 important. Okay. Then म्यूटा रोटेशन में क्या पढ़ना है कि you only remember that invert sugar portion. Okay, so look at me, invert sugar क्या होता है, you know, glucose is a dextrorotatory compound. Why it is dextrorotatory, that you know. dextrorotation क्या है, अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ग्लूकोज सॉल्यूशन के अंदर गो थ्रू किया तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट में रोटेट करते हैं, समझा। What about फ्रैक्टोज, लेफ्ट में रोटेट करते हैं, तो लेफ्ट में रोटेट कर रहा है तो JNDC डेक्स्ट्रो और लीवो। अभी तो बोला मैंने ग्लूकोज डेक्स्ट्रो है क्योंकि राइट में रोटेट कर रहा है, सो लाइट को लेफ्ट में रोटेट किया तो व्हाट डज इट मीन, फ्रैक्टोज इज लीवो रोटेटरी। तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज मिलकर क्या बनता है, डाइसैकराइड होगा। किसी को बोल सकते हैं which is the disaccharide formed by the combination of glucose and fructose. अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, चाय में डालते, शुगर केन से मिलता है, नॉर्मल शुगर है वो, C12H22O11 है फॉर्मूला, सुक्रोज, यस। So sucrose is also dextrorotatory, but sucrose को तुमने हाइड्रोलाइज किया, टेस्ट ट्यूब में सुक्रोज लिया, अभी उसका रोटेशन तो क्या है, डेक्स्ट्रो है। बट इफ यू ऐड सम वाटर, सुक्रोज विल हाइड्रोलाइज एंड फॉर्म इट्स बेसिक कंपोनेंट्स। विच आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सुक्रोज, अभी तो बोला सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लू एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में वो डिकम्पोज हो चुका है, टेस्ट ट्यूब में अभी सुक्रोज नहीं मिलेगा तुम लोगों को, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलेगा। ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग है या सेम एजेंट, ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की अलग है। कौन डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, सुक्रोज डेक्स्ट्रो है, मैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज का पूछ रहा हूं। ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, फ्रक्टोज लीवोरोटेटरी। ओके, सो टेस्ट ट्यूब ने एक मिक्सचर फॉर्म किया है, थोड़ा डेक्स्ट्रोरोटेटरी, हाफ ऑफ द कंपाउंड इज
इक्विमोलर मिक्सचर हो गया, वो डेक्स्ट्रो भी हो गया, लीवो भी हो गया. नाउ व्हाट हैपेंस इज ग्लूकोज की डेक्स्ट्रो रोटेशन थोड़ा कम डिग्री है. डेक्स्ट्रो रोटेशन हमने मेजर किया तो इट इज लेस, बट लीवो की फ्रक्टोज की लीवो रोटेशन इज मोर, ज्यादा रोटेट करते की तरफ. तो ऑफकोर्स सम टोटल किसकी तरह रहेगा, लीवो रोटेशन रहेगा. Which means that after hydrolysis, sucrose is no more dextrorotatory, it is levorotatory. तो डेक्स्ट्रो से लीवो में कन्वर्ट करने के लिए बस पानी डालना है सुक्रोज के अंदर, समझा. सो दिस चेंज इज कॉजिंग, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ऑप्टिकल एक्टिविटी. एंड ऐसे बना हुआ जो शुगर है ना, अभी टेस्ट ट्यूब में जो शुगर, इनवर्ट शुगर बोलते हैं उसको, सुक्रोज बिकम इनवर्ट शुगर राइट नाउ. Why? Because it lost its optical property from dextro, changed its optical property from dextro to levo. उसका रीजन क्या है, फ्रक्टोज की मोर लीवो रोटेशन, समझा. ये हमेशा पूछता है. तो इनवर्ट शुगर क्या है वो समझा, सुक्रोज क्या है, दैट इज एन एक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड. वेरी गुड. ओके. And when you go to the next one, ozazole formation is not there in the syllabus. ये हमने पढ़ा भी नहीं. So we can go to invert sugar. This is the process of invert sugar. I told you. देखो, sucrose is dextrorotatory. हाँ, sucrose की component क्या क्या है? Glucose and fructose. देखो, पानी डालने के बाद वो levorotatory बन चुका है. So dextro become levo after the addition of water. Okay. So that is sucrose is an invert sugar. Now one more thing you have to remember is, this is always asking for the exam, sucrose is a non-reducing sugar. Okay, ये याद करने के लिए हमें ऐसे सोच सकते हैं कि सुक्रोज चीनी, राइट, इट्स आवर शुगर. शुगर की कलर एकदम क्रिस्टलाइन व्हाइट और कलरलेस है. सो इट्स नॉट रेड इन कलर, so it's non-reducing. ऐसे सोचो. Okay, just for a mnemonic you just think like sucrose is non-reducing. बट इसका रीजन क्या है, नॉन रिड्यूसिंग मींस इसके पास फ्री अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है. अगर फ्री अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है तो उसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं. सो सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज उसके पास फ्री अल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है. ओके. सो नो फ्री CHO, अल्डिहाइड ग्रुप नहीं रहता है, नो फ्री CHO ग्रुप. ओके. देखो +2 माइनस शिफ्ट, दैट इज इनवर्ट शुगर. Then we are approaching amino acids. After studying carbohydrate, in carbohydrate I told you the main thing is glucose and its structure. When you come to amino acid, proteins का building blocks होता है ना amino acids. So amino acids में there are amino acids का structure पता है कैसा है, central carbon रहेगा, then एक साइड पे COOH ग्रुप, एक साइड पे NH2 ग्रुप, and one valency of carbon is satisfied by hydrogen and another valency is satisfied by R group. This R group can be alkyl group. Like if it is hydrogen, it's not alkyl group. If it is hydrogen, the amino acid is glycine. If it is CH3, the amino acid will be alanine. If it is CH3, CH3 isopropyl group, then it is valine. Like that, वो changing है. This R quotient is changing, while the rest of the three sites, three atoms attached to the carbon will not change. समझा? So amino acid की basic structure वही है. एक चीज तुम लोग नोटिस किया, ये अमीनो एसिड को अमीनो एसिड क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसमें अमीनो ग्रुप भी है, एसिडिक ग्रुप भी रहता है. अमीनो ग्रुप बेसिक है, एसिडिक है. आज आपका अमीन्स पूरा पढ़ा. अमीन्स का एसिडिटी एक टॉपिक नहीं है, अमीन्स का बेसिसिटी इज द टॉपिक, राइट? सो अमीन्स आर बेसिक इन नेचर. सो बेसिक कैरेक्टर्स देयर फॉर एन अमीनो एसिड, दैट वी ऑल एग्री. व्हाट अबाउट COOH? नाम में ही एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड. सो इट इज एन एसिडिक ग्रुप. तो बेसिक ग्रुप भी है, एसिडिक ग्रुप भी है, इसलिए अमीनो एसिड दे कैन हैव बेसिक एज वेल एज एसिडिक प्रॉपर्टी. तो ऐसे एक कॉम्पाउंड अगर बेसिक और एसिड के साथ, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, तो उसको क्या बोल सकते हैं? एम्फोटेरिक बोलते हैं. तो वाटर इज आल्सो लाइक एम्फोटेरिक, राइट? हाँ, इसी तरह अमीनो एसिड्स आर आल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर. तो वर्ड एम्फोटेरिक का मतलब समझा?
उसको बेसिक ग्रुप भी है, एसिडिक ग्रुप भी है. So like what we learned in this Bronsted-Lowry concept के अनुसार acids are H plus donors, bases are H plus acceptors. तो at a particular point ये एसिड को क्या कर अमीनो एसिड्स को क्या कर सकते हैं? जस्ट अ सेकंड, देखिए सेंट्रल कार्बन राइट साइड में जो COH है दैट कैन डोनेट वन हाइड्रोजन, राइट, because that is acidic group. Acidic groups will donate hydrogen. और जो गया हुआ हाइड्रोजन है that can be taken up by the amino group and it will form NH4 plus instead of NH3. NH3 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, NH4 plus हो गया. This is base. वो itself प्रूव किया ना, वो बेस है. क्यों? हाँ, because वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया है. ओके, now it's not NH4, right? NH3 plus बराबर. What about this carbon CO group? COH H था, उसका हाइड्रोजन गया तो it will become CO minus. Which means that यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप किया है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया है. NH2 ग्रुप ने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया and it got a positive charge. What about this carboxylic group? It lost one hydrogen and it got a negative charge. एक ही कॉम्पाउंड में नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, तब उसको बोल सकते हैं which ion? Zwitter ion. So amino acids are Zwitter ion. तो दो कॉन्सेप्ट आपको समझा. अमीनो एसिड की स्ट्रक्चरल वाइज देखा तो आम्फोटेरिक नेचर होने का चांसेस है बिकॉज उसके पास एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है. एंड उसके स्ट्रक्चरल वाइज ब्रॉन्स्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट के अनुसार उसको H प्लस डोनेट कर सकते हैं एक साइड से, दूसरी साइड से H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकते हैं. सो इट कैन बी व्हाट? Zwitter ion. Zwitter ion means in the same molecule you can find positive and negative charge. Okay. And one more general topic. ये Zwitter ion फॉर्म करने के लिए जो pH चाहिए, it doesn't behave like a Zwitter ion at all pH. Okay. हर एक अमीनो एसिड को एक पर्टिकुलर pH में आया तो ही ये लेना देना हो सकता है. हाइड्रोजन कैन बी डोनेटेड फ्रॉम वन साइड, हाइड्रोजन कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द अदर साइड ओनली एट अ पर्टिकुलर pH. एंड ये pH को एक खास नाम बोलते हैं. उस pH का नाम क्या पता है? हियर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. ये नोट डाउन करना है. व्हाट इज TI? TI मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. Isoelectric point is the pH, the particular pH at which this amino acid is behaving like a Zwitter ion. A dipolar ion वो form करता है only at the isoelectric point. Okay. Now coming to peptide bond structure. टू अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड केमिकली क्या होता है? अमाइड बॉन्ड माना जाता है ना. अमाइड बॉन्ड क्या है? CONH बॉन्ड है. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दो अमीनो एसिड को ड्रॉ कर रहा हूं, दिख रहा है? तो कलर चेंज करना है. एक अमीनो एसिड को मैंने ऐसे लिखा, दूसरा अमीनो एसिड भी ऐसे उसके पास में आ रहा है. देखा, दो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड में यहां पे प्लॉट किया है. एंड हियर यू कैन सी यहां पे जो OH ग्रुप है वो OH और यहां पे NH2 की एक हाइड्रोजन वाटर बन के निकल सकते हैं. ओके, सो दैट उसके पास क्या हो जाएगा? CONH बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं. ये बॉन्ड नहीं, दिस बॉन्ड C के पास आ जाएगा CONH बॉन्ड. इसमें मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं. देखिए यहाँ पे देखो OH की OH गया, COH की OH गया, NH2 की एक हाइड्रोजन गया, दूसरा हाइड्रोजन को मैंने ऊपर ड्रॉ करता हूं. ठीक है, और ये ऑक्सीजन को भी मैंने I will indicate it above. Double bond O, single bond H. NH2 था, एक हाइड्रोजन गया, COOH था, एक OH भी गया. तो अभी ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड तो आ सकते हैं. So you make sure that the bond is not in between oxygen and nitrogen. कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन ग्रुप उधर ही है,
NH ग्रुप भी इधर ही है. द बॉन्ड इज हैपनिंग इन बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन. कार्बन नाइट्रोजन के बीच में है बॉन्ड फॉर्मेशन. कार्बन के पास अपना ऑक्सीजन रहेगा, नाइट्रोजन के पास अपना हाइड्रोजन भी रहता है. ये CONH बॉन्डिंग को बोलता है अमाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज ऐसे बोलते हैं. समझा? सो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से प्रोटीन्स बन रहा है, पॉलीपेप्टाइड्स बन रहा है. सो द सेम क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द केस ऑफ शुगर्स ऑल्सो. दो मोनोसैकेराइड मिलकर डाइसैकेराइड बनता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने थोड़ी देर पहले सुक्रोज के बारे में बोला, जेन सुक्रोज इज मेड अप ऑफ एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. उसके बीच में तो बॉन्ड होना चाहिए. वो बॉन्ड भी H2 एलिमिनेट करके बनता है. पता है मयूरेश, विच बॉन्ड इज इन बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज? Glycosidic linkage. Very good. Glycosidic linkage is the linkage between monosaccharide. Peptide linkage is the linkage between amino acid. ये दो कंपेयर करके पढ़ा. अभी आगे जाके न्यूक्लिक एसिड में भी पढ़ेंगे. न्यूक्लिक एसिड्स में दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, न्यूक्लियोटाइड्स आर द स्मॉल स्मॉल बीड्स इन द मेन चेन. ऐसे याद रखो. डीएनए की बैकबोन है ना, दैट इज न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. मेनी न्यूक्लियोटाइड से बनाया हुआ एक लंबा चेन है. दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. सो न्यूक्लियोटाइड्स का लिंकेज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, वो भी पढ़ा हमने. ओके, यस. नाउ डिड यू सी दिस वर्ड कंडेंसेशन? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन स्टेट बोर्ड स्टूडेंट पॉलीमर्स पढ़ा है ना. कंडेंसेशन पॉलीमर मतलब क्या है? कैसे बनाया हुआ पॉलीमर्स है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, जैसे H2O, NH3, HCl जैसा स्मॉल मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं. यहाँ पे कौन सा स्मॉल मॉलिक्यूल निकल गया? जो विच मॉलिक्यूल एलिमिनेट करके बना पेप्टाइड बॉन्ड? H2O. So of course it is a condensation polymer. So proteins, formation of protein, वो polymerization is a condensation polymerization. Okay. Now starch versus cellulose. पॉलीसैकेराइड्स में 3 इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स पढ़ना है: स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन. ओके, तो उसमें स्टार्च इज द stored form of carbohydrate in plants. What is the stored form of carbohydrate in animal? My bio student बोलो. हाँ, ग्लूकोज स्टोर कर सकते हैं. ग्लूकोज कौन सा फॉर्म में? इंसुलिन आके ग्लूकोज को किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? लिपिड्स में. नो, ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म इन एनिमल, वो प्लांट है, प्लांट्स में है. लिवर में और मसल में, लिवर, मसल, ब्रेन में ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन. सो ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल. स्टार्च इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स. देन सेलुलोज क्या है? सेल वॉल. सेल वॉल ऑफ प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज. सो here you can see starch में दो chains are there, amylose and amylopectin chain. आगे जाके हम लोग ये chain का difference पढ़ेंगे. याद रखो, amylose is a straight chain polymer. दो chains रहता है starch में. okay, amylose भी रहता है, amylopectin भी रहता है. अल्फा डी ग्लूकोज की straight chain है तो that is amylose, लेकिन उसमें branches आए तो amylopectin. तो branched one कौन है? amylopectin. स्ट्रेट चेन कौन है? amylose. याद रखना. देन सेल्यूलोज. सेल्यूलोसिस बीटा लिंकेज है, मतलब ये अल्फा डी ग्लूकोज बोला मैंने, ये बीटा डी ग्लूकोज का रहेगा. ग्लूकोज है दोनों, ग्लूकोज ही बनाया है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग अलग. यू विल गेट टू लर्न व्हाट इज अल्फा एंड बीटा फॉर्म. अल्फा बीटा फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? आनोमर्स बोलते हैं. वी लर्न दैट. ओके, अभी रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग मैंने ऑलरेडी बोल चुका है. सुक्रोज reducing and non-reducing agent. Sucrose, no, not reducing. Yes, okay. So because उसके पास free aldehyde group नहीं है, या यहाँ देखो access denied. अगर free aldehyde group नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? Non-reducing बोलते हैं. अगर free aldehyde है तो वो reducing होता है. Most of the monosaccharides उसके पास free aldehyde तो रहता ही है, तो इसलिए वो reducing माना जाता है. And even in disaccharide में maltose lactose है ना, वो भी reducing है. Only sucrose, that is the main example of this non-reducing sugar. वो याद रखो तो कि MCQ में ऐसे 4-5 एग्जाम्पल्स ऑप्शंस आ जाएंगे, उसमें सुक्रोज ही रहेगा, बट non-reducing मोशन. कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, वो पीछा भी है. ओके, देन कम्स टू
प्रोटीन स्ट्रक्चर हायरार्की, प्रोटीन को हमारे बॉडी में 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक जा सकते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। few एग्जांपल्स बोला तो इंसुलिन इज प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, दिस केराटिन, केराटिन किधर है फाल्गुनी, कौन सा बॉडी पार्ट में, हेयर में, हेयर्स की प्रोटीन है ना केराटिन, केराटिन इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, अल्फा हेलिक्स बोलते हैं इसको। देन टर्शरी स्ट्रक्चर में आ जाते हैं हमारा मायोग्लोबिन, मसल की हीमोग्लोबिन। देन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल, 2 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडीज बोलते हैं, डिसीज कोसिंग ऑर्गेनिजम्स आया तो उसको मारने के लिए हमारी बॉडी में डी सेल्स एंटीबॉडी बनाते हैं ना, वो एंटीबॉडीज, दैट देयर स्ट्रक्चर, देयर प्रोटीन्स, देयर स्ट्रक्चर इज क्वाटरनरी। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किधर है मयूरेश, ब्लड में, ब्लड को रेड कलर देता है, ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है, ये हीमोग्लोबिन भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है। तो आपको समझा कि सारा प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर में काम नहीं करते हैं, उसको फंक्शनल होने के लिए उसका स्ट्रक्चर थोड़ा फोल्डेड होना चाहिए। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग्स बिल्कुल नहीं है, उसमें बस अमीनो एसिड का सीक्वेंस ही रहेगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इट कैन फॉर्म कोइल्स लाइक दिस। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसे देखो, ऐसे राइट हैंडेड हेलिक्स बना सकते हैं, केराटिन वैसा है, हेयर की प्रोटीन, और इट कैन फॉर्म जिगजैग पैटर्न, ऐसे जिगजैग जिगजैग जिगजैग, ये देखो एक ही प्रोटीन ऐसे जिगजैग बन गया, बीच में भी बन सकते हैं, उसके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ सकते हैं, यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ सकते हैं। सो क्या है, अल्फा हेलिक्स में इंट्रा, बीटा प्लीटेड शीट्स में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफरेंट है दोनों में, स्टिल दे आर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। टर्शरी स्ट्रक्चर कैसा है, इट्स लाइक ए बॉल की तरह दिखता है, देखा गोल गोल, उसमें एक ही चेन ऐसे जैसे हमारा धागा होता है ना, वुलन बॉल, वुलन बॉल, वुलन बॉल की तरह बन गया वो, ओके। एंड इसके बीच में बहुत सारे बॉन्ड्स ऑपरेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइसल्फाइड ब्रिजेस रहता है, सल्फर 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 कंटेनिंग अमीनो एसिड है, सिस्टीन एंड मेथियोनिन, 20 अमीनो एसिड होता है, उसमें 2 ही अमीनो एसिड है जिसमें सल्फर रहता है, दे आर सिस्टीन एंड मेथियोनिन। अगर सिस्टीन मेथियोनिन अमीनो एसिड पास पास आ गया है तो उसके बीच में सल्फर सल्फर लिंकेज फॉर्म कर सकते हैं। जैसे डाइसल्फाइड लिंकेज, ये बॉल को ऐसे बॉल के रूप में, that thread is not going to unwind itself, ये स्ट्रांगली ऐसे कैसे होल्ड किया है, बिकॉज ऑफ द disulfide bond as well as hydrophobic interaction as well as ionic bond as well as hydrogen bond, ऐसे 4 linkages ऑपरेट करता है। बियॉन्ड दिस मेन लिंक भी है, मेन लिंक क्या है, मेन बॉन्ड क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड, CONH बॉन्ड तो रहता ही है अमीनो एसिड के बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड है वो, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ये 4 बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गया, टोटल 5 बॉन्ड से स्टेबल है। तो ऐसा भी सवाल पूछता है कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन की स्ट्रेंथ और द फंक्शन इज डिटरमाइंड बाय व्हिच स्ट्रक्चर, इट्स अ टर्शरी स्ट्रक्चर, ओके। और ये 3 स्ट्रक्चर बनाने के लिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बनाने के लिए हमको एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन का जरूरत है, ओनली 1 पॉलीपेप्टाइड चेन इज इनफ, ओनली 1 मोती की माला से बना सकते हैं ये सब कुछ, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, टर्शरी भी। लेकिन क्वाटरनरी अगर बनाना है तो मिनिमम 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स चाहिए हमारे पास। सो मिनिमम 2 पॉलीपेप्टाइड, देखो यहाँ पे देखो, एक ग्रे कलर में भी 2 पॉलीपेप्टाइड दिखाया है, रेड कलर में भी 2 पॉलीपेप्टाइड दिखाया है। ऐसे इमेजिन करो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन्स आर आल्सो देयर, 2 बीटा चेन्स आर आल्सो देयर। मान लो ये अल्फा है, ये ग्रे वाला भी अल्फा है, ये रेड वाला बीटा है, दिस रेड वाला भी बीटा रहेगा। सो 2 अल्फा 2 बीटा, समझा। सो इफ मिनिमम 2 ही चाहिए, यहाँ पे तो कितना हो गया, 4 हो गया, तो बन सकते हैं ना क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो नेवर थिंक लाइक 4 चाहिए क्वाटरनरी के लिए, नहीं, मिनिमम 2 इज रिक्वायर्ड, 2 इज इनफ। बट एग्जाम्पल जो बोल रहा है वो हीमोग्लोबिन में 4 है, तो 4 में 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स आर देयर, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन्स मिलके बनता है हीमोग्लोबिन। इसी तरह और एक एग्जाम्पल बोला था मैंने, याद है तो बताओ, अनदर एग्जाम्पल फॉर ए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, नहीं वो टर्शरी है, इम्यूनोग्लोबुलिन, दैट मींस दैट एंटीबॉडी बोलते हैं हम। इम्यूनोग्लोबुलिन में क्या क्या है, 2 H2L2 मतलब क्या है, हेवी चेन भी 2 है, लाइट चेन भी 2 रहता है, तो वैसे भी 4 चेन रहता है उससे। अल्फा बीटा नहीं बोलते हम, H2L2 बोलते हैं, 2 हेवी 2 लाइट, इसको अल्फा 2 बीटा 2 बोलता है, 2 अल्फा 2 बीटा चेन। तो स्ट्रक्चरल वाइज ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स याद रखो, एंड द मेन इंपॉर्टेंट टर्शरी है। और यहाँ पे देखो डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, सी
फॉर एग्जाम्पल हेयर स्ट्रेटनिंग किया, बाद में उसको आफ्टर केयर नहीं दिया तो वो वापस कर्लिंग होता है, बिकॉज पहले हमने उसको हीट देके स्ट्रेटन किया, विच मीन्स दैट दैट प्रोटीन केराटिन लॉस्ट इट्स स्ट्रक्चर। सेकेंडरी कौन सा स्ट्रक्चर है केराटिन का, अभी तो बोला, ध्यान दिया तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, थैंक यू। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर रहता है ना केराटिन को, वो लॉस्ट हो गया, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। इंटैक्ट मतलब चेंज नहीं हो गया। से देखो डीनेचुरेशन कर रहा है तो भी उसका हायर स्ट्रक्चर चेंज होता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं कर सकते, जैसे सब स्केलेटन, इसमें चेंज नहीं होगा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट आफ्टर डीनेचुरेशन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, वापस कोयल कर सकते हैं सेकेंडरी में, तो इसलिए स्ट्रेटनिंग होने के बाद में कर्ल अप होने का चांसेस है। ओके, कभी कभी परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल एग को फ्राई किया या बॉईल किया, एग के अंदर जो एल्बुमिन है, दैट व्हाइट एग व्हाइट, दैट लिक्विड पोर्शन, दैट इज एल्बुमिन, राइट। वो प्रोटीन को अगर हमने फ्राई किया तो वो सॉलिड हो गया, बॉईल किया तो भी वही हो रहा है, बाद में उसको वापस वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ओरिजिनल अंडे की तरह, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो परमानेंटली ऐसे डीनेचर हो गया। इसको डीनेचुरेशन बोलता है, चाहे वो टेम्पररी हो या परमानेंट हो। दिस चेंजिंग इन इट्स नेटिव स्ट्रक्चर, native structure can be secondary, tertiary, quaternary, but original structure, primary structure will not change. Okay, so that unraveling the knot मतलब the folding जो होता है ना वो open हो रहा है, folding open किया तो बाद में primary structure में बदल जाते हैं, तो fold करके बनाया इतने, तो unfold किया तो primary structure में वापस आ जाएगा। This conversion of higher structures into primary structures is known as denaturation। एक दो एग्जाम्पल मैंने बोला, हेयर का भी बोला और अंडे का भी बोला, एग। एंड वन मोर थिंग यू कैन रिमेंबर इज दिस कर्ड मिल्क के से प्रोटीन कॉल्ड केसिन। केसिन को कोआगुलेट को हो सकता है इफ इट इज एन एसिडिक पीएच, डीनेचुरेशन होगा, हीट दिया तो भी, एसिडिक हुआ तो भी, दूध फट जाते हैं ना, तो ऐसे फट गया तो दैट विल बिकम कर्ड। कर्ड में क्या है, केसिन कन्वर्टेड इनटू केसिनोजन, इसका नेचर स्ट्रक्चर लॉस हो चुका है, समझा, बाद में हमें कर्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं मिल्क में, नहीं, तो दैट इज अ परमानेंट डीनेचुरेशन, परमानेंटली वो लॉस्ट हो चुका है उसका स्ट्रक्चर। याद रखो, तो ट्रेड बॉन्ड इंटैक्ट हो गया। व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ डीनेचुरेशन, हेवी मेटल्स, हीट, पीएच में चेंज हो गया। देखो मिल्क क्यों कर्ड में कन्वर्ट होता है, डीनेचुरेशन है ना, क्यों, एसिडिटी, मिल्क में एसिडिक पीएच आ गया तो इट विल टर्न इनटू दिस वन कर्ड। हेयर स्ट्रेटन करने के लिए क्या किया, स्ट्रेटनर से हीट दिया, हीट डीनेचुरिंग एजेंट। ओके, सो याद रखो प्राइमरी स्ट्रक्चर लॉस नहीं होता है, अनदर स्ट्रक्चर सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स लॉस होता है। न्यूक्लिक एसिड्स, नरेश को मैंने पूछा था, न्यूक्लिक एसिड्स, दे आर द टू एग्जांपल्स आर डीएनए, आरएनए, है ना। तो न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यहां पे देखो, न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन व्हाट ऑल थिंग्स, नाइट्रोजन बेस, बेस लिखा है ना, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर, दैट मींस हमारा न्यूक्लिक डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोस शुगर रहेगा, आरएनए है तो राइबोस शुगर रहेगा। तो वैसे शुगर भी हुआ, नाइट्रोजन बेस भी हुआ, फॉस्फेट ग्रुप भी आ गया, ऐसे थ्री कंपाउंड से बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। सो नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। ओके, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स, दो न्यूक्लियोटाइड्स यहां पे देख सकते हैं, ऑल ऑफ यू लिसन, देखो नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, 1 2 3 न्यूक्लियोटाइड हो गया। इसी तरह यहां पे भी तुम लोग को देख सकते हैं, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, 1 2 3। देखा यहां पे नाइट्रोजन बेस, सॉरी फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोस शुगर के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है। एक न्यूक्लियोटाइड की पेंटोस शुगर दूसरे न्यूक्लियोटाइड की फॉस्फेट ग्रुप के साथ बॉन्ड बन रहा है। इस बॉन्ड की नाम क्या है, थोड़ी देर पहले बोला था मैंने, पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन अमीनो एसिड्स, that is present in monosaccharides, इसका नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहां पे देखना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड समझा, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का बॉन्ड है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सो होप दिस मच इज क्लियर।
डीएनए होता है तो 2 स्ट्रैंड्स रहता है, एक 3' to 5' रन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3rd कार्बन फ्री है शुगर के, तो यहाँ पे उसका 5th कार्बन फ्री रहेगा। ऑपोजिट रहता है नेक्स्ट सेकंड स्ट्रैंड, यहाँ पे 5th एंड 5th कार्बन, 5 कार्बन शुगर है ना, पेंटोज शुगर, 5th कार्बन फ्री रहेगा यहाँ पे, सो दैट इसमें 3rd कार्बन फ्री रहेगा। एंटी पैरेलल पोलैरिटी रहता है द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को। एंड हमेशा नाइट्रोजन बेस कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होता है। आइडेनिन ऑलवेज बेस पेयर विद थाइमिन बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, guanine always base pair with the cytosine by triple hydrogen bond, ATGC। डीएनए है तो ATGC, आरएनए है तो A T की जगह पे यूरासिल आते हैं, गुआनिन साइटोसिन AUGC रहता है। बात इतना क्लियर हो गया? वेरी गुड। Vitamins and deficiencies is also one more important interesting topic है। इसमें ये नीचे देखो, विटामिन ए की डेफिशिएंसी causes xerophthalmia, that means dryness of the eye and night blindness भी बोल सकते हैं। Night blindness will be caused by the deficiency of vitamin A। Then vitamin C, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी होता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी causes स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, पुअर कोलाजन। Then vitamin D, it's required for bonds, तो bonds की सॉफ्ट हो जाएगा ना विटामिन डी ने, तो so that is causing rickets, that is soft bonds, poor calcium absorption। विटामिन डी में B12 रहता है। there are specific different types of vitamin D, B1, B2, B3, B6, B9, B12, इतने सारे विटामिन बी रहता है, तो इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम। उसके लास्ट वाला है ना विटामिन B12, वो नहीं है तो हमें परनीशियस एनीमिया कोज करते हैं। सो विटामिन B12 की वजह से हमारा नर्व डैमेज, लो आरबीसी, ये सब कुछ हो सकता है। सो दैट इज द डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ विटामिन B12। ओके, तो ये सब कुछ याद रखना। एंड वन मोर चीज याद रखना, अडकन बीसी। अडकन बीसी फैट में सोलुबल है। फैट सोलुबल vitamins are A, D, E, K, and water soluble vitamins are vitamin B and the C, all B complex, B1 से लेके B12 तक जो भी है वो, as well as C, they are soluble in water। तो वाटर में soluble है विटामिन B से B and C, वाटर में soluble है A, D, E, K। यहां तक अच्छे से समझा? फाइन। प्रोटीन की कलरीमेट्रिक टेस्टिंग में only one thing you have to study is this ninhydrin test। प्रोटीन को अगर हमने ninhydrin is a reagent and you know it is carcinogenic also, cancer causing है। So if you spray ninhydrin, what happened? It will cause blue or purple coloration for the protein। प्रोटीन अगर मान लो कलरलेस है, पहले अमीनो एसिड कलरलेस है, क्रोमेटोग्राफी किया तुम लोग, ऐसे सोचो, प्रोटीन को क्रोमेटोग्राफी पेपर में रख के उसकी अमीनो एसिड तुम लोगों ने सेपरेट किया, तो बताया ना क्रोमेटोग्राफी में सेपरेट होता है। एंड इट इज इनविजिबल राइट नाउ। तुमको आरएफ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नीड द एंड पॉइंट, कहां तक वो वाटर की लेवल आ गया। सो यू नीड अ विजिबल कलर राइट, अदरवाइज कैसे पता चल जाएगा, कहां पे मेजर करोगे तुम लोग। तो गिव कलर टू द अमीनो एसिड, पहले कलरलेस अमीनो एसिड है, उसको कलर आइडेंटिफाई करने के लिए ninhydrin स्प्रे कर सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफिक प्लेट को ऐसे पकड़ के स्प्रे करना पड़ेगा ninhydrin, सो दैट उसमें पर्पल और ब्लू कलरेशन आ जाएगा, which indicate अमीनो एसिड है तुम्हारे क्रोमेटोग्राफिक पेपर में। तो वो बस याद रखो, ninhydrin causes अमीनो एसिड टू कलर ब्लू और पर्पल। क्लियर? यस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ज्यादातर नीट जैसे क्वेश्चन में बायो पार्ट में भी हो सकता है। जनरल आइडिया तो होना ही चाहिए सबको। You know that we all have unique DNA, okay? जैसे हमारी आईज या फिंगरप्रिंट जो होता है, इसी तरह हमारा डीएनए भी यूनिक ही रहता है। सो डीएनए आइडेंटिफाई करने के लिए हमें अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं। ओके, डीएनए आइसोलेट करके हम अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नामक एक प्लेट है, ये देखा है, प्लेट का नाम है अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये प्लेट का नाम नहीं, प्रोसीजर का नाम। तो इसमें हम क्या करते हैं कि क्राइम सीन से मिला हुआ सैंपल डीएनए सेपरेट करके रखा है। एंड यहाँ पे देखो 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, ये 4 लाइन में हम 4 सस्पेक्ट, जिसको हम ऐसे क्राइम किया हुआ ऐसे माना जाते हैं, वी आर डाउटिंग फ्यू पीपल, उसका डीएनए लेना है।
तो उसका डीएनए भी ऐसे सेपरेट करना है। तो किसका डीएनए का सेपरेटिंग बैंड से सिमिलर आया, क्राइम सीन से सिमिलर आ गया, ही इज द कल्प्रिट। समझा? सो वी आर जस्ट मार्चिंग द डीएनए सेपरेटिंग पैटर्न। अगर यहाँ पे 3 का सेम पॉइंट मैचिंग आया, देन 3 इज द कल्प्रिट। ओके, सो दिस इज अ वे टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स। पैटर्निटी मैटर्निटी डिस्प्यूट सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे का डीएनए लेके पेरेंट्स से क्रॉस चेक किया तो पता चल जाएगा कि बच्चा पेरेंट्स का ही है क्या, वैसे। ओके, देन लिपिड्स में क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारी लिपिड्स इज बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट थिंग, एनर्जी देता है। मोर ओवर हमारा सेल्स की, हर एक सेल की मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन, दैट इज मेड बाय लिपिड, फॉस्फोलिपिड बोलते हैं उसको। सो फॉस्फोलिपिड से बनता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड्स में बाइलेयर होता है। सिंगर एंड निकोलसन नामक 2 साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया, हमारी हर एक सेल मेम्ब्रेन को क्या रहता है, बाइलेयर रहता है। यहाँ पे देखो, एक फॉस्फोलिपिड, ऐसे कितना फॉस्फोलिपिड अरेंज किया है सोचो। इन द सेम वे नीचे दूसरा लेयर दिख रहा है फॉस्फोलिपिड का, अनदर लेयर। सो 2 लेयर ऐसे सैंडविच की तरह, उसका हेड वाला पोर्शन बाहर अंदर, बाहर भी है हेड, अंदर भी है। ये सेल के अंदर वाला पोर्शन है, सेल साइटोप्लाज्म आ जाएगा। ये 2 सेल के बीच वाला पोर्शन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सो ईसीएम, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी फॉस्फोलिपिड का हेड है, साइटोप्लाज्म की तरफ भी फॉस्फोलिपिड का हेड है। हेड इज हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग है, लेकिन इन बिटवीन सैंडविच के बीच में जो फिलिंग रखा है, दैट इज टेल, हाइड्रोफोबिक पोर्शन है। तो 2 हाइड्रोफिलिक पोर्शन के बीच में ट्रैप किया हुआ हाइड्रोफोबिक टेल, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दैट इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। तो ये लिपिड लविंग पोर्शन है, ये वाटर लविंग पोर्शन है। क्लियर? ओवरऑल एक समरी मिला होगा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर्स का। अभी हम देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है। डाइसैकराइड की लिंकेज एक बार देख लो। आई टोल्ड यू माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोस, ये 3 डाइसैकराइड हमें पढ़ना है एज पर द सिलेबस। माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोस। सुक्रोस तो तुम लोग ऑलरेडी पढ़ा होगा, सुक्रोस की लिंकेज कैसा है, अल्फा डी ग्लूकोस, बीटा डी फ्रक्टोस। ओके, व्हाट अबाउट लैक्टोस की लिंकेज, बीटा डी गैलेक्टोस एंड बीटा डी ग्लूकोस। सर ऐसे याद रखो, गैलेक्टोस प्लस ग्लूकोस इक्वल टू लैक्टोस, ग्लूकोस प्लस फ्रक्टोस इज इक्वल टू सुक्रोस। और एक है माल्टोस, अल्फा डी ग्लूकोस, अल्फा डी ग्लूकोस। ओके, सो 2 ग्लूकोस से बनाया है ग्लू प्लस ग्लू, माल्टोस। गैल प्लस ग्लू, गैलेक्टोस प्लस ग्लू, वो कौन सा गैलेक्टोस है, बीटा डी गैलेक्टोस और अल्फा डी ग्लूकोस, बीटा डी ग्लूकोस। सो दैट विल बिकम लैक्टोस। एंड ग्लूकोस प्लस फ्रक्टोस, ग्लूकोस और फ्रक्टोस से बनाया है विच वन, सुक्रोस। चलो बायोस ध्यान नहीं देना, ओनली दीज 3 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। डिसरिगार्ड ना सिलेबस, याद रखोगे। अल्फा डी ग्लूकोस प्लस अल्फा डी ग्लूकोस, माल्टोस। बीटा डी गैलेक्टोस प्लस बीटा डी ग्लूकोस, लैक्टोस। अल्फा डी ग्लूकोस प्लस बीटा डी फ्रक्टोस, सुक्रोस। ओके, फाइन। Quantification of fat is not there. You can leave it. हाँ, cofactors and holo enzymes वो देखते हैं। देखो, you know enzymes हमेशा से ज्यादातर enzymes अपने आप एक्टिवेट नहीं होता है। एक एग्जाम्पल में बोलो, हमारा पेप्सिनोजन गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाते हैं इन द स्टमक, that is inactive, उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, that job is done by HCl। मतलब इनएक्टिव एंजाइम्स में प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में, उसको एक्टिवेट करना तो पड़ता ही है। सम ऑफ द एंजाइम्स को मदद करने के लिए, इसे जगाने के लिए, सो रहे इसको जगाने के लिए क्या चाहिए, कोफैक्टर्स चाहिए। ओके, सो एंजाइम्स हैज अ प्रोटीन पार्ट, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, वो याद रखो, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन से बनाया है एंजाइम्स। सो प्रोटीन पार्ट भी रहता है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी रहता है, प्रोटीन पार्ट भी रहता है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी रहता है।
सो इनएक्टिव प्रोटीन को हम अको एंजाइम बोलता है, उसको एक्टिवेट होने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट इज ऑल्सो देयर बिकॉज अको एंजाइम इज प्रोटीन, ये प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी चाहिए सो दैट इट बिकम एक्टिव एंजाइम कॉल्ड होलो एंजाइम। मतलब प्रोटीन पार्ट भी चाहिए प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट भी चाहिए होलो एंजाइम बनाने के लिए। ओके, प्रोटीन पार्ट को अको एंजाइम बोलते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलना पड़ेगा, वी कैन कॉल इट एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। or we can call it as cofactors. Okay, प्रोस्थेटिक ग्रुप है तो वो देखो परमानेंट लिखा है, मतलब स्ट्रांगली बॉन्ड करते हैं प्रोटीन पार्ट से, प्रोटीन पार्ट को स्ट्रांगली बॉन्ड किया है। ओके, फॉर एग्जांपल ऐसे सोचो कि ये देखो, ये प्रोटीन पार्ट, ये नॉन प्रोटीन पार्ट, ये नॉन प्रोटीन पार्ट बस ऐसे ही रखा है, इट्स नॉट स्ट्रांगली बाउंड, then this is known as coenzyme. This is a non-protein part which is transiently bound, loosely bound to the protein part. अगर ये एकदम अच्छे से फिट हो गया, स्ट्रॉन्ग है ना, so this part is known as prosthetic group. तो prosthetic group और co-factors का डिफरेंस समझा होगा। prosthetic group और co-factor दोनों में से एक चाहिए प्रोटीन को जगाने के लिए, होलो एंजाइम बदलने के लिए। तो एक अको एंजाइम पार्ट में ट्रांसिएंटली बाउंड किया हुआ है कोएंजाइम्स एंड स्ट्रांगली बाइंड किया हुआ है प्रोस्थेटिक। ओके, एंड ये प्रोस्थेटिक ग्रुप कभी कभी क्या भी हो सकता है, मेटल आयंस भी हो सकता है, उसको हम एक्टिवेटर्स भी बोल सकते हैं, Zn2+ Mg2+ जैसा मेटल आयंस भी हो सकता है। एनीवे बस इतना समझो, नॉन प्रोटीन पार्ट कैन बी प्रोस्थेटिक ग्रुप व्हिच इज स्ट्रांगली बाउंड टू द प्रोटीन और कोएंजाइम्स व्हिच इज लूजली बाउंड टू द प्रोटीन। वेरी गुड, समझा? स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस वन, हमारा ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट का स्टीरियोकेमिस्ट्री बोल रहा है। सी यू कैन सी यहाँ पे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, एक्चुअली दिस स्ट्रक्चर इज रॉन्ग, ग्लिसरॉल्डिहाइड की स्ट्रक्चर कैसे रहता है, CHO H OH CH2OH, इग्नोर दिस स्ट्रक्चर, के वाला स्ट्रक्चर तो याद रखो। इसमें देखा आपने OH राइट साइड में आया है। ओके, सो इफ OH इज ऑन द राइट देन दैट इज डी ग्लिसरॉल्डिहाइड माना जाता है, एंड इफ OH इज ऑन द लेफ्ट साइड उसको क्या माना जाता है, L ग्लिसरॉल्डिहाइड माना जाता है। सो हु डिसाइड्स शुगर इज डी और एल, उसकी असिमेट्रिक कार्बन की, असिमेट्रिक कार्बन मतलब चारों ग्रुप अलग अलग होना, तो इसमें एक ही असिमेट्रिक कार्बन है, ऊपर देखो अलग 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 अलग, तो एक ही असिमेट्रिक कार्बन है, तो फिर बहुत इजी हो गया, असिमेट्रिक कार्बन की OH राइट साइड है तो डेक्स्ट्रो नहीं डी, दिस इज नॉट कोडिंग फॉर दैट डेक्स्ट्रो डी, वो इट इज कैपिटल डी एंड कैपिटल एल, लेफ्ट में आया तो एल बोलते हैं। एंड ग्लूकोज का कैसा है, आगे जाके क्वेश्चन में ग्लूकोज का दिया है, मैं दिखाता हूँ। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ पे देखो दिस इज डी ग्लूकोज, अभी इसको कैसे डिराइव करते हैं, ये कार्बन असिमेट्रिक है, ये कार्बन असिमेट्रिक है, कार्बन असिमेट्रिक है, कार्बन भी असिमेट्रिक है ना, ये वाला कार्बन असिमेट्रिक क्यों नहीं मयूरेश, वाई इट इज नॉट असिमेट्रिक, CHO ग्रुप को एलाबोरेट करो, C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H, दो वैलेंसी ऑक्सीजन लेके गए, सो इट इज नॉट 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं आ सकते ना, 3 डिफरेंट ग्रुप आ सकते, सो इट्स नॉट असिमेट्रिक। यहाँ पे देखो CH2OH, 2 हाइड्रोजन आया ना, तो इसकी वजह से इसका भी असिमेट्री लॉस हो गया, सो विच मींस दैट इट हैज ओनली 4 असिमेट्रिक कार्बन। 4 असिमेट्रिक कार्बन में किधर देखना है, कौन राइट में है कौन लेफ्ट में है, तो राइट में देखा तो देखो 3 राइट में है, 1 लेफ्ट में है, तो किसके ऊपर बोलना चाहिए, डी या एल, ओनली बिकॉज ऑफ द लास्ट लोवेस्ट असिमेट्रिक कार्बन। अभी इसको लोवेस्ट कैसे समझेगा, ये है या लोवेस्ट, ये या लोवेस्ट, हमेशा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो उसको प्रेफरेंस याद आए, सो दिस इज कार्बन नंबर 1, C1 C2 C3 C4 C5 C6, सो फर्स्ट कार्बन से लेके काउंट किया था, लोवेस्ट असिमेट्रिक कार्बन C फिफ्थ कार्बन है, C फिफ्थ कार्बन की राइट साइड में OH आया, मतलब डेक्स्ट्रो,
D, capital D. It's not dextro, D. Okay. Unfortunately, this is the dextro compound also. वो राइट में रोटेट करता है, तो ऐसे याद रखो ये कैपिटल डी और स्मॉल डी के बीच में कुछ फर्क ही नहीं है, देयर इज नो रिलेशन इज देयर, समझा? कैपिटल डी डिनोटिंग वेयर द पोजीशन इज OH, स्मॉल डी डेक्स्ट्रो का डी, स्मॉल डी क्या डिनोट कर रहा है, अगर राइट में रोटेट कर रहा है या लेफ्ट में रोटेट, बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता है, कैपिटल डी मतलब हमेशा डेक्स्ट्रो को डिनोट करता है, ऐसा नहीं, कैपिटल डी इज डिनोटिंग वेयर इज द पोजीशन ऑफ OH, स्मॉल डी वाला डेक्स्ट्रो दैट इज डिनोटिंग to which direction the light is rotated by the compound. तो ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? ठीक है, तो then we'll start with the questioning. Okay, अभी तो ओवरऑल एक आइडिया हो गया, 1 आवर में हमने समरी किया है. Now for the next half an hour, let's revise some questions. The incorrect statement about glucose is dash. जोर से पढ़ो, कौन? जैन, रीड. Glucose is soluble in water because of having aldehyde functional group. Okay. Then second, glucose remains in multiple isomeric form in its aqueous solution. Glucose is an aldohexose. Glucose is one of the monomer unit in sucrose. इसमें 1 घंटे अच्छे से ध्यान दिया तो कुछ ना कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं. एलिमिनेट, मलिश, लास्ट ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं. इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, इनकरेक्ट पूछ रहा है. So tell me whether this is wrong or right. This one is correct, right? मैं टिक मार्क कर रहा हूं, दिस इज करेक्ट. ओके, दिस इज नॉट इनकरेक्ट, करेक्ट. व्हाई? बिकॉज़ सुक्रोज इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फैक्टर्स. ग्लूकोज तो है इस पे. फाल्गुनी, ग्लूकोज अल्डोहेक्सोस है क्या? ये चीज क्या है? अल्डोहेक्सोस मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है क्या? है. 6 कार्बन है क्या? 1 2 3 4 5 6 हेक्सोस. अल्डोहेक्सोस मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, 6 कार्बन भी है, तो दैट इज ट्रू, अल्डोहेक्सोस है. ग्लूकोज रिमेन इन मल्टीपल आइसोमेरिक फॉर्म इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन में ग्लूकोज की आइसोमेरिक फॉर्म इट कैन बी सी डेक्स्ट्रोरोटेट. ग्लूकोज का अगर अल्फा डी है तो कैसा रहेगा? डी ग्लूकोज है तो इट इज ऑलवेज डेक्स्ट्रोरोटेटरी. ओके, अगर एल फॉर्म में है तो एल ग्लूकोज है तो कैसा रहेगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी उल्टा रहेगा ना, लीवर रहेगा. वो समझा? ग्लूकोज का हमेशा डेक्स्ट्रो नहीं रहता है, डी ग्लूकोज का पॉजिटिव है लेकिन एल ग्लूकोज का नेगेटिव है. सो इट इज लाइक मल्टीपल, ये हो गया ना. एंड नॉट ओनली इन रोटेशन वाइज आइसोमेरिक फॉर्म, मतलब ये लोग क्या पूछ रहे कि डी फॉर्म एंड एल फॉर्म में एक्सिस्ट होगा क्या ग्लूकोज? ऑफ कोर्स, अभी तो बोला डी फॉर्म में भी ग्लूकोज बैठ सकते हैं, एल फॉर्म में भी ग्लूकोज पे बैठ सकते हैं. सो इट इज ट्रू, राइट? इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट, व्हिच मींस दैट द आंसर विल बी द फर्स्ट स्टेटमेंट. तो अभी वो क्या है? ग्लूकोज इज सोल्युबल इन वाटर, वो सही है, आधा तो सही है. सो दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट, बाकी पोर्शन गलत रहेगा. बिकॉज ऑफ हैविंग एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप. वाटर में सोल्युबल होता है बिकॉज ऑफ एल्डिहाइड है क्या? नो. बिकॉज ऑफ विच बॉन्ड? हर चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि सोल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है, विच बॉन्ड की वजह से बढ़ता है. तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, ये एल्डिहाइड ग्रुप में है ना, सी डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड H. तो कार्बोनिल ग्रुप रहता है जिसको पोलैरिटी है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, उसको वाटर की हाइड्रोजन के साथ ऐसे अटैच होने का चांसेस है. एज यू नो OH ग्रुप भी सफिशिएंट है इसके पास. OH ग्रुप को भी क्या कर सकते हैं, यहां से टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड है. ओके, तो इसके आंसर हम देखते हैं. Glucose is soluble in water due to the presence of alcohol functional group and extensive hydrogen bonding. CHO जो कुछ लेना देना नहीं है. CHO किसका है? रेड्यूसिंग या नॉन रेड्यूसिंग है, वो बोल रहा है. अगर ऐसा है सवाल, ग्लूकोज इज रेड्यूसिंग शुगर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड, वो तो सही है. ग्लूकोज रेड्यूसिंग है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, दैट वी कैन एग्री.
बट ये सोलिबिलिटी और अल्डिहाइड मैच नहीं हो रहा है. सोलिबिलिटी किसके तक मैच होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप OH as well as the hydrogen bonding. So I agree to the fact that glucose is soluble. बाकी उसका रीजन गलत बोला है. तो रीजन रियल क्या है? OH group. हाँ, so just note down this glucose. Just sentence note down करो, just for your information. Glucose is soluble in water due to the presence of soluble in water due to the presence of OH group and H bonding. Okay. If you want बाकी ऑप्शन से भी तुम लोग को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा है तो वो भी नोट डाउन कर सकते हैं. ग्लूकोज aldohexoside, you can note down that. ग्लूकोज सुक्रोज की मोनोमर यूनिट है, that also you know. Then उसको डी एंड आइसोमर फॉर्म में एक्सेस कर सकते हैं. क्लियर? ओके, सो व्हाट ऑल थिंग्स वी लर्न फ्रॉम हियर? इस क्वेश्चन से क्या क्या पढ़ा, जल्दी बोलो. Solubility caused by H bond. Then glucose is an aldohexose. aldehyde ग्रुप भी है, 6 कार्बन भी रहता है. Then मल्टीपल आइसोमर्स रहता है ना ग्लूकोज को. मल्टीपल आइसोमर्स को है डी आइसोमर, एल आइसोमर ऑफ ग्लूकोज. डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज दोनों एक्सिस्ट होता है. ओके, देन और एक क्या था? ग्लूकोज इज अ कंपोनेंट ऑफ सुक्रोज. फोर पॉइंट्स ग्लूकोज के रिलेटेड हमने पढ़ा है. तो आगे ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आए तो आसानी से करोगे. या नाउ a sequence of how many nucleotides in messenger RNA makes a codon for an amino acid? ये क्या सेकंड क्वेश्चन? ये सेकंड क्वेश्चन. बायोलॉजी में डीएनए बिकम एमआरएनए फर्स्ट. एमआरएनए बिकम पॉलीपेप्टाइड्स. पॉलीपेप्टाइड को फोल्ड किया तो बाद में वो प्रोटीन बनता है. दिस इज द pathway for transcribing the entire genetic information to form a protein. तो डीएनए में नाइट्रोजन बेस तो रहता ही है. डीएनए की नाइट्रोजन बेसेस 4 है. कौन कौन सा है? बोलना. आर्जिनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरासिल नहीं रहेगा ना. साइटोसिन, थाइमिन. ओके, सो इन शॉर्ट ATGC ये 4 से बनाया हुआ क्या रहता है? डबल स्ट्रैंड रहता है. ये ए के ऑपोजिट टी आएगा, टी के ऑपोजिट ए आएगा, जी के ऑपोजिट सी आएगा, है ना. जी के ऑपोजिट सी आएगा, सी के ऑपोजिट जी आएगा, टी के ऑपोजिट ए आएगा. तो ऐसे डबल स्ट्रैंड बन रहा है डीएनए. आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड. ये डीएनए की 3' to 5' मान लो, ये 3' to 5' उसको टेम्पलेट में लेके 5' to 3' ऑपोजिट साइड में बनता है एमआरएनए. इतना याद रखो, डीएनए में 2 स्ट्रैंड है, उसकी एक स्ट्रैंड जो 3' to 5' चल रहा है, दैट इज द पेरेंट फॉर एमआरएनए. उस स्ट्रैंड से बनता है एमआरएनए. तो एमआरएनए में अभी देखो डीएनए में ए आया पहले, तो यहाँ पे क्या आएगा? यू. थाइमिन इज नॉट देयर इन द एमआरएनए. टी ए जी सी. इसी तरह बनता है हमारा एमआरएनए. ये एमआरएनए में हर एक 3 लेटर्स को बोलता है एक कोडॉन. सो दिस 3 लेटर इज अ कोडॉन C1. दिस 3 लेटर्स इज अनदर कोडॉन C2. दिस 3 लेटर्स इज अनदर कोडॉन C3. ओके, तो इसी तरह मल्टीपल कोडॉन्स रहता है. इवन दो देयर आर 4 नाइट्रोजन बेसेस इन द डीएनए, अमीनो एसिड बनाने के लिए, एक अमीनो एसिड बनाने के लिए एमआरएनए में 3 लेटर काफी है. समझा? We only need 3 letters, 3 nitrogen bases to create an amino acid. तो बताइए इसमें से कितना अमीनो एसिड बना सकते हैं? अमीनो एसिड 1,
अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, सिंपल। सो जितना 333 लेटर्स है उतना अमीनो एसिड बना सकते हैं। 15 लेटर्स है, कितना अमीनो एसिड बना सकते हैं? 15/3, 5 अमीनो एसिड बना सकते हैं। तो यहाँ अभी इसका आंसर बताओ। A sequence of how many nucleotides in messenger RNA makes a codon? A codon 3. Codon is a triplet. याद रखो, the answer will be C. So the 4 bases in mRNA, adenine, cytosine, guanine and uracil, have been shown to act in the form of a triplet. 4 तो है डीएनए में, बट अमीनो एसिड बनाने के लिए आरएनए में 3 ही चाहिए। Okay, so this is a triplet. The word you have to remember is a triplet. Codon is a triplet. समझ गया? वेरी सिंपल। एक कब पूछा था, कौन सा एग्जाम में पूछा? नीट। पुरानी है फिर भी पूछ सकते हैं। Incorrect. The incorrect statement regarding the given structure is, given structure मतलब वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ही पूछ रहा है। फर्स्ट फिगर में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर दिमाग में है ना, इस स्ट्रक्चर याद रखो। इन द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कौन सा वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? फाल्गुनी फर्स्ट वन पढ़ो। ओके, कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू ए। इससे पहले तुम लोग नोट डाउन किया कोडोन इज ए ट्रिपलेट। मेन कीवर्ड नोट डाउन करना हर एक क्वेश्चन का। कोडोन इज ए ट्रिपलेट। फाइन। इस क्वेश्चन में वापस आओ। कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू ए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड विद Br2 वाटर। सेकंड ऑप्शन पढ़ो फाल्गुनी। Has 4 asymmetric carbon atom, will coexist in equilibrium with the 2 other cyclic structure. ओके, तो इसमें एक ही ऑप्शन पढ़ के तुम लोगों को इसमें एलिमिनेट करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज हम ऑलरेडी पढ़ चुका है। ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर अगर यूज कर रहा है तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किसमें बदल जाता है? ग्लूकोज, ब्रोमीन वाटर, क्या मिलेगा? ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड कैसे दिखता है? फर्स्ट कार्बन COH में बदल जाएगा और वो CHOH वाला पोर्शन 4 रहेगा बीच में और लास्ट वाला CH2OH इस स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसा है अभी? CHOH 4 है, उसका मैंने ऐसे इंडिकेट कर रहा हूं। देखो ये ग्लूकोज को इसने कन्वर्ट किया, सो ओनली वन कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हियर, राइट फाल्गुनी? CH2OH सेम है, CHOH सबको दे सेम है, CHO दैट इज चेंजिंग। व्हाट डज इट मीन? Br2 वाटर डाला तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। फंक्शनल ग्रुप एक ही बदल गया। दोनों बदलना है तो फिर क्या डालना है? वेरी गुड, वो याद रखना, HNO3 डाला तो ही सकारिक एसिड बन सकते हैं। वेरी गुड। सकारिक एसिड कैसा रहेगा? यस, ध्यान दे रहे हो। तो ग्लूकोज में HNO3 डाला तो इट विल फॉर्म सकारिक एसिड। सकारिक एसिड इज लाइक फर्स्ट कार्बन की COH है, इन बिटवीन 4 कार्बन CHOH है, लास्ट वाला कार्बन COH। इसी है ना? देखो ऐसा वाला सवाल आया तो वी विल स्कोर गुड मार्क्स। सो द आंसर इज ए। ग्लूकोज Br2 वाटर में ग्लूकोनिक एसिड बनता है। इट्स नॉट ए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज ए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड। ओके, ये नोट डाउन किया था इसके पहले वाला, ये नोट डाउन करो।
नोट इट इन योर नोटबुक। ग्लूकोज किसमें क्या बन रहा है? हो गया ना? टू 2018 NEET, see, recent years here. Difference between amylose and amylopectin. हमें ऐसे पढ़ा था कि अमाइलोस अमाइलोपेक्टिन दोनों सांस में रहता ही है, बट अमाइलोस इज स्ट्रेट चेन, अमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच्ड। हाँ, अभी स्ट्रेट चेन का लिंकेज आई विल से 1,4 लिंकेज है और ब्रांच का लिंकेज 1,6 लिंकेज है। सो अमाइलोस में 1,6 होगा क्या? ब्रांच नहीं है तो 1,6 नहीं रहेगा। तो अमाइलोस डजंट हैव 1,6, अमाइलोस हैव ओनली 1,4 लिंकेज। तो ये दिमाग में रख के हम पढ़ते हैं। वो amylopectin has 1,4 alpha linkage and 1,6 alpha linkage. सही है ना? Yes, that is true. Wait. Second, amylose has 1,4 alpha linkage and 1 beta linkage. amylose में 1,4 alpha linkage, बीटा किधर से आया कहानी में? तो अल्फा ग्लूकोज से ही बनता है। Sounds just like पूरा अल्फा ग्लूकोज, उसमें बीटा ग्लूकोज है ही नहीं। तो then this is wrong. Okay. Amylopectin has 1,4 and the 1,6 linkage. That also I agree. लेकिन 1,6 बीटा लिखा है, that I can't agree. 1,6 अल्फा है, बीटा शुगर नहीं है उसमें। Okay. So beta 1,4 glycosidic linkage, alpha 1,4 glycosidic linkage. Wait a minute. Alpha 1,6 या बीटा 1,6? अल्फा है, बराबर। So the answer is first one. फर्स्ट वन इज द आंसर। ये भी गलत है बिकॉज बीटा है, हो नहीं सकता है उसमें। लास्ट वन भी गलत रहेगा ना। अमाइलोस इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। हाँ, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से क्या बनता है? अमाइलोस बनता है। फिर क्या बनता है? सब लोग एक साथ बोला, आई एम सो हैप्पी। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से माल्टोस नहीं लैक्टोस बनता है। कुछ नहीं पढ़ रहे। ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से बनता है माल्टोस, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से लैक्टोज बन रहे। So this is wrong. This is wrong. This is wrong. The only correct answer is first one. तो दो चीज तुम लोग नोट डाउन करना है, लिखो। अमाइलोस only alpha 1,4 glycosidic linkage. Only alpha 1,4 glycosidic linkage. अमाइलोपेक्टिन अल्फा 1,4 भी रहता है, अल्फा 1,6 भी रहता है। किधर? वो ब्रांच वाला पोर्शन में अल्फा 1,6 आता है। For more knowledge, you can also say that amylose starch की 20% बनता है, 80% amylopectin है। starch में दोनों रहता है, but 20% is only amylose. And you can also say ये water insoluble है, amylose ये soluble है water में। ये branched है amylose, branched है amylopectin। इसका बाकी भी डिफरेंसेस हमने देख चुका है। देन कम्स दिस, बहुत छोटा क्वेश्चन है। देखो, लिस्ट 1 और 2 से मार्च करना। कैसे मार्च कर सकते हैं? मयूरेश, इट्स योर चांस, टेल मी।
इधर वन बाय वन मैच करते हैं हम, ठीक है। अल्फा ग्लूकोस, अल्फा गैलेक्टोस, ग्लूकोस और गैलेक्टोस, ये पता था तुमको? ग्लूकोस एंड गैलेक्टोस क्या है? छोड़ दो, आई विल एक्सप्लेन। अल्फा ग्लूकोस एंड बीटा ग्लूकोस, ये तो अभी पढ़ा है मैंने। अल्फा ग्लूकोस एंड बीटा ग्लूकोस, हाँ आनोमर बोल सकते हैं, है ना। अल्फा फॉर्म्स एंड बीटा फॉर्म्स कैसा है कि मैं वहां पे ड्रॉ करके दिखाता हूं, पहले ये डिस्कस करने दो। देन अल्फा ग्लूकोस एंड अल्फा फ्रक्टोस, ग्लूकोस एंड फ्रक्टोस 11th स्टैंडर्ड की टॉपिक, ग्लूकोस फ्रक्टोस। ग्लूकोस की फॉर्मूला सेम, फ्रक्टोस की फॉर्मूला सेम, बट स्ट्रक्चर अलग, फंक्शनल ग्रुप अलग। हाँ तो फंक्शनल ग्रुप ऐसा मेरे साथ, बस ये दोनों के कर सकते हैं क्या? देखो मतलब B3C1 कोई है, B3C1 है क्या? देखो हाफ ऑफ द नॉलेज इज इनफ फॉर दिस क्वेश्चन, बट पूरा नॉलेज तो चाहिए इसमें। देखो लास्ट वन, ग्लूकोस एंड राइबोस दे आर होमोलोगस। क्यों बोलता है कि ग्लूको होमोलोगस सीरीज तो पता होगा, होमोलोगस सीरीज में डिफरेंस क्या रहेगा? CH2 इज द डिफरेंस, राइबोस 5 कार्बन शुगर है, ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर है, इसका डिफरेंस CH2 है, मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज्यादा है इस पे, यहाँ पे ग्लूकोज में। तो ऑफ कोर्स वो तो होमोलोगस सीरीज का मेंबर हो चुका है, नियर बाय मेंबर्स हो चुका है, तो वो सही है। फिर जो बाकी अल्फा ग्लूकोस एंड अल्फा गैलेक्टोस दे आर दिस वन एपिमर्स। सो आई हैव टू टीच यू टू थिंग्स नाउ, एपिमर क्या है, अनोमर क्या है, ये तो पढ़ा तो एक आंसर पूरा हो जाएगा। तो पहले आंसर देखते हैं हम, CC इज द आंसर, सो आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट इज अनोमर एंड व्हाट इज एपिमर, वो डिस्कस करके हम आज की क्लास खत्म करते हैं। तो अनोमर डिस्कस करने के लिए मुझे ना ग्लूकोज की स्ट्रक्चर एक बार लिखना पड़ेगा, डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 2 3 4 5 6 CHO फर्स्ट, CH2OH लास्ट, देखा था यहाँ पे HOH थर्ड कार्बन में उल्टा है, OH H HOH HOH। तो कितना इजी है डी ग्लूकोज लिखने का, डी ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी पॉजिटिव है, तो D प्लस ग्लूकोज, ये हो गया। एंड यू नो वन थिंग, ये ना सोल्यूशन स्टेट में इट कांट एक्सिस्ट लाइक दिस, ये रिंग बनाते हैं, ये इसको इस स्ट्रक्चर का नाम है फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन विल टर्न टू हार्वर्ड स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर। हार्वर्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते टाइम में चलिए क्या होता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है CHO, CHO कैसे लिख सकते हैं? आई कैन राइट C सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H, वैसे लिख सकते हैं ना, C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। सो ये वाले ऑक्सीजन और दिस वन फर्स्ट कार्बन की OH, तो राइट साइड में लिखा तो इसी रहेगा, आई विल राइट लाइक दिस, C double bond O single bond H. This oxygen is now going to react with this fifth carbon. C1 और C5 के बीच में रिंग फॉर्म हो रहा है। So what happens is ये OH ग्रुप ना ऐसे ही यहाँ पे चले जाएंगे। So this OH group now I am going to erase from here. Okay, and ये O है ना, this O is now common for them. कार्बन है यहाँ पे, O is common for them. समझा? यहाँ पे जो OH था वो चले गए ऊपर फर्स्ट कार्बन के साथ। हम नाउ लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर, रिंग बनाते हैं। तो हार्वर्ड स्ट्रक्चर इज रिसेंबलिंग टू पायरानोस, पायरानोस की तरह है, तो पायरानोस रिंग ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें पायरानोस की एक
ट्रेशन हो गया, ऑक्सीजन कम्स हियर राइट, फर्स्ट कार्बन यहाँ पे है C1, C2, C3, C4, C5। देखो फर्स्ट कार्बन में ये रिंग की लेफ्ट में जो है, स्ट्रेट चेन की लेफ्ट में जो है वो सब ऊपर चले जाना चाहिए। सो सी OH ऊपर है ना, H नीचे है, तो फर्स्ट कार्बन आई हैव सेटिस्फाइड। सेकंड कार्बन H ऊपर OH नीचे, थर्ड OH ऊपर H नीचे, फोर्थ H ऊपर OH नीचे, फिफ्थ, अब फिफ्थ को मैंने CH2OH ही ऊपर लिखना पड़ेगा, H नीचे। यहाँ पे इस दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर। हाँ वो स्ट्रक्चर बनाना इजी है ना, कैसे किया हमने, रिंग की लेफ्ट में जो भी है वो सब कुछ ऊपर, रिंग की सॉरी स्ट्रेट चेन की राइट में जो है वो सब कुछ रिंग के नीचे। अभी फर्स्ट कार्बन, दिस इज आवर anomeric carbon C1. See, this carbon is known as anomeric carbon, the connecting carbon between C5, okay, C2 and the C5, C2 C5 के बीच में वो कनेक्टिंग वाला पोर्शन है ना, तो वो देखो ये कार्बन में क्या हो चुका है कि OH ग्रुप रिंग के ऊपर आ गया। If OH is above the ring, then that is बीटा फॉर्म, बीटा डी ग्लूकोज है वो। व्हाट इज दिस, दिस इज बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोस, रिंग स्ट्रक्चर है ना, तो पाइरानोस से रिजेंबल हो रहा है। तो इसका अल्फा फॉर्म कैसा रहेगा, हाँ ऑपोजिट ड्रॉ करना पड़ेगा ना, कैसा है, उल्टा करो, ओनली द फर्स्ट वन, H ऊपर OH नीचे, OH बिलो द रिंग हो गया ना, बिलो द रिंग अल्फा है, अल्फा डी प्लस ग्लूको पाइरानोस, बाकी में चेंज कुछ नहीं है। बाकी सब कुछ सेम है, ओनली द फर्स्ट कार्बन दैट यू हैव टू टिल्ट, ओके ऊपर नीचे हो गया है। सो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस हो गया, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस हो गया। ये अल्फा बीटा फॉर्म को बोलता है एनोमस। कितना इजी है टॉपिक, ग्लूकोज की दो स्ट्रक्चर्स, दो रिंग स्ट्रक्चर्स का नाम दिया है एनोमस। The monosaccharide whose cyclic structure differ only in the orientation of OH group at the anomeric carbon. So only one carbon की orientation में ही difference है cyclic structure में, तो उसको क्या बोलते हैं, एनोमस बोलते हैं। समझा, एनोमस कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो अल्फा बीटा फॉर्म्स आर एनोमस। अभी मैं एपिमर सिखाने के लिए जा रहा हूं। इसके लिए भी ग्लूकोज ड्रॉ करना पड़ेगा पहले, 1 2 3 4 5 6, CHO H OH OH H H OH H OH CH2 OH। दिस इज D प्लस ग्लूकोज, उसमें कुछ डाउट नहीं। अब मैं इसकी गैलेक्टोस वाला क्वेश्चन लिखने के लिए मेरा इसका फोर्थ कार्बन उल्टा करना है। ये वाला फोर्थ कार्बन 1 2 3 4, ये वाला जस्ट, ये साइक्लिक नहीं, साइक्लिक में भी वो टिल्ट होगा ऑफ कोर्स, ओपन चेन स्ट्रक्चर में ही फोर्थ कार्बन में ओरिएंटेशन डिफरेंट हो गया, सो देन इट विल बिकम गैलेक्टोस। 1 2 3 4 5 6, कैसा रहेगा, H OH OH H, फोर्थ कार्बन आ गया ना, अभी OH लेफ्ट में लिखना है, H राइट में लिखना है, H OH, तो गैलेक्टोस हो गया वो। तो दिस डिफरेंस इज क्रिएटिंग एपिमर। एपिमर क्या है, ओनली वन कार्बन में की ओरिएंटेशन में डिफरेंस होता है, ओके ओपन चेन स्ट्रक्चर में। तो ग्लूकोज की C4 एपिमर है गैलेक्टोस, और एक है ना ग्लूकोज की C2 एपिमर। फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन में चेंज हो गया OH H,
थर्ड कार्बन में C OH H, फोर्थ कार्बन H OH H OH, तो ये होगा मानोस, which is the C2 epimer of glucose. So ये C2 epimer है, ये C4 epimer है. ओके, तो होप ये दो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो, C4 एंड C2 epimers. ओके, सो ग्लूकोज की एपिमर क्या है? कोई भी एक कार्बन में ओरिएंटेशन डिफरेंस हो गया तो दैट कैन बी एपिमर, एंड इफ इट हैपेंस ओनली एट द फिफ्थ पोजीशन, तो रिंग स्ट्रक्चर में फर्स्ट कार्बन में, फिफ्थ पोजीशन फर्स्ट कार्बन में रिंग स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, तो देन दैट इज एनोमर. तो एनोमर रिंग स्ट्रक्चर में होता है, एपिमर स्टार्ट फ्रॉम द ओपन चेन स्ट्रक्चर्स. बहुत इजी है ना? So बाकी questions we'll discuss in the next class. Thank you.